Good afternoon, student. Today we are going towards unit number 5 and the most crucial unit of electromagnetic field. Crucial in a sense, in this unit we are going to learn how we have implemented electromagnetic fields in actual way. Okay, so in actual manner, when we say that we are going to implement the electromagnetic field, the main reason why which we are understanding this part of electromagnetic field is the combination over which electromagnetic field is transformed. सबसे पहली चीज जो अपने को इस यूनिट के अंदर में समझनी है दैट इज वेव प्रोपोगेशन। अपने को ये यूनिट आया क्यों है और इसका क्या सीक्वेंस है, सिलेबस सीक्वेंस क्या है, इसके ऊपर से ये काम करता है। अगर अपन अपने यूनिट नंबर 1 से पीछे जाते हैं तो यूनिट नंबर 1 में अपन ने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है और उसको फिजिकली एनालाइज करने के लिए जिस थ्योरी का अपन इस्तेमाल करते हैं उस थ्योरी का नाम है वेक्टर। Vector is a mathematical tool which is we are using for analyzing the electromagnetic field. But when we have analyzed in unit number 1 what is magnetic electromagnetic field and how we can analyze that electromagnetic field, we have moved specifically towards electric field in unit number 2. यूनिट नंबर 2 में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या है, उसके क्या क्या पैरामीटर है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ये सब चीज़ें अपन ने यूनिट नंबर 2 में थे। फिर अपन गए यूनिट नंबर 3 की तरफ जो कि एक्सक्लूसिवली डील करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, what is magnetic field intensity, what is magnetic flux, and how magnetic flux densities are going to be converted in any kind of a operation. Now, unit number 4 is actually our way or approach to move from electric field to magnetic field or magnetic field to electric field under the title or under the definition or under the circumstances called as a boundary. So that's why we name that unit as a boundary conditions and Maxwell's equation. Based on this, we are moving towards the यूनिट नंबर 5 दैट इज कॉल्ड एज द प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव प्रोपोगेशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को लेके जब एक वेव बनाई जाती है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक चैनल से दूसरे चैनल पे या ट्रांसमीटर से रिसीवर तक कुछ इंफॉर्मेशन लेके। तो ईएम वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, जो कि ट्रांसमीटर से रिसीवर तक उस इंफॉर्मेशन को लेके जाती है। How to propagate, how to transfer this EM wave from their transmitter to receiver, and what are the main characteristics of EM wave we are going to learn inside this unit called as unit number 5. Now the title of propagation of EM wave is there, and in notes I have straight away moved towards the wave equation in free space. But before we go towards this, I have to quickly introduce you to bit of the history of this electromagnetic wave propagation. In electromagnetic wave propagation, there are certain properties of electromagnetic wave. Like electromagnetic wave propagates in a medium with a finite speed. जब भी कोई ईएम वेव किसी मीडियम में से जाती है तो एक फाइनाइट स्पीड के साथ जाती है, उसका जो स्पीड है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं। जब भी कोई ईएम वेव ट्रांसपोर्ट करती है तो वो एक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है। जब भी कोई ईएम वेव किसी मीडियम में से जाती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है, डिफ्रैक्ट करती है या पोलराइज करती है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद ईएम वेव जो EM wave is a combination of electric and magnetic field. That's why it contains the combination of some electric element and magnetic element. Then in EM wave, the E bar and H bar are the two direction of propagation. Like suppose if E bar is happening in a vertical direction, H bar will happening in a horizontal direction. They are always perpendicular to each other. Then EM wave has now component called as E bar and H bar. Okay. Then second part of the unit or second part of the understanding is that when suppose I have EM wave, मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना दिया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सिग्नल को लेकर। अब मुझे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजना है तो मेरे पास कितने मीडियम अवेलेबल है और उसमें से कितने अपने सिलेबस के अंदर यूनिट नंबर 5 में रिस्क्राइब किए गए। तो टोटली इन यूनिट नंबर 5 वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द ईएम वेव अंडर 4 डिफरेंट मीडियम। The very first medium is a free space. Second medium is a lossy dielectric medium. Third medium is a lossless dielectric medium, and fourth medium is a superconductor medium. See, lossy dielectric means it is a dielectric material called medium. जो medium या path use किया गया है वो dielectric material से बनाया गया है पर जिसके अंदर में loss है। लॉसलेस मतलब जिसके अंदर में लॉस जो है वो बहुत माइनर है या इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। और सुपर कंडक्टर मतलब जिसके अंदर कंडक्टिविटी जो है वो हाई है।
फ्री स्पेस मतलब जिसके अंदर में ना कंडक्टिविटी है ना रेजिस्टिविटी, ठीक है। इट इज लाइक अ एयर। जब अपन ईएम वेव को हवा में भेज देते हैं, एक एंटेना से ईएम वेव निकल के दूसरे रिसीवर की तरफ जब जाता है हवा में, फ्री स्पेस, ज्यादातर ईएम वेव का कम्युनिकेशन फ्री स्पेस में ही होता है। नॉर्मली ईएम वेव काय के लिए यूज की जाती है, अगर उसका बेस्ट एग्जांपल मुझे आपको आपके सामने रखना है, तो जो पुराने जमाने में अपन दूरदर्शन के चैनल देखते थे, तो एक बड़ा सा एंटेना आता था, जिन्होंने लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा। उस एंटेना से जो सिग्नल भेजा जाता था जनरली अर्लियर टाइम, it was used with the respect to EM waves. Now the speed are increased, the speed is issue, the waves are differently used, radiated signal use are increased. So these kind of things are happening. But when we want to transfer the EM wave in a free space, the EM wave will move from one medium to another medium with the help of the air as only the medium. तो अपने को सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि अगर कोई ईएम वेव फ्री स्पेस के अंदर में मूव कर रही है तो उसका वेव इक्वेशन क्या है, किस इक्वेशन के साथ में वो मूव कर रही है, क्योंकि अपना तो पूरा एनालिसिस मैथमेटिकल है। सो अपना पहला टाइटल है वेव इक्वेशन ऑफ ईएम वेव व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम फ्री स्पेस। तो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है डिराइव वेव इक्वेशन फॉर ईएम वेव व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम फ्री स्पेस। ओके, तो सबसे पहले फ्री स्पेस बोल दिया मतलब कुछ चीजें पक्की है, जैसे सिग्मा जीरो है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी। फ्री स्पेस है तो कंडक्टिविटी का सवाल ही नहीं है, सिग्मा जीरो है। रेजिस्टिविटी मतलब रो भी जीरो है। एप्सिलॉन जो है दैट इज परमिटिविटी, इट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी और फ्री स्पेस परमिटिविटी। म्यू ऑटोमेटिकली बन जाएगा म्यू जीरो, परमियाबिलिटी विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। और जे बार का जो फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा इंटू ई, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जीरो, क्योंकि सिग्मा का वैल्यू हो गया जीरो। तो फ्री स्पेस के अंदर में सिग्मा जीरो है, रो जीरो है, एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन जीरो है, म्यू का वैल्यू म्यू जीरो है, ठीक है। उसके बाद डी बार का एक फॉर्मूला अपने को पता है कि डी बार का वैल्यू होता है एप्सिलॉन इंटू ई बार, और बी बार का वैल्यू होता है म्यू इंटू एच बार। तो एप्सिलॉन की जगह पर आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो इंटू, यहाँ पर एच बार लिखा है, एच बार नहीं है वो ई बार है, एप्सिलॉन जीरो इंटू ई बार और म्यू जीरो इंटू एच बार, ये आएगा अपना इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब अपन ने जितने भी वेव इक्वेशन अपने को निकालने हैं, उस इक्वेशन को निकालने के लिए अपने पास किसकी हेल्प अपने को लेनी है, तो अपन यूनिट नंबर फोर में जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से कंबाइन किया, तो मैक्सवेल ने चार इक्वेशन अपने को बताए थे, जिसकी वजह से अपन ये बोल सकते हैं कि वी कैन को रिलेट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्हीं चार एक्सप्रेशन का अपने को हर एक वेव इक्वेशन में इस्तेमाल करना है और अपने को अपना डेरिवेशन निकालना है फॉर पर्टिकुलर मीडियम। जैसे यहाँ पे फ्री स्पेस के लिए मेरे पास मैक्सवेल के चार इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर वन ऑफ मैक्सवेल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गॉस लॉ इज डेल बार डॉट डी बार इज इक्वल टू रो वी। Equation number 2 of Maxwell is del bar dot B bar is equal to 0. Equation number 3 of Maxwell is a del bar cross E bar is equal to minus del B by del T. और equation number 4 for Maxwell is del bar cross H bar और del bar cross H bar is equal to del D by del T. It is del D by del T. ठीक है, तो यही मेरे इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में इक्वेशन नंबर वन जो है मैक्सवेल का, जो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ इक्वेशन नंबर टू करके, क्योंकि वन में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। तो मैक्सवेल के पहले इक्वेशन को मैं दो नंबर देता हूँ, दूसरे को तीन देता हूँ, तीसरे को चार देता हूँ, चौथे को पांच। तो इक्वेशन नंबर वन आ जाएगा डेल बार डॉट डी बार रो वी इज इक्वल टू जीरो। तो डेल बार डॉट डी बार इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि रो वी का वैल्यू कितना है, जीरो। उसके बाद डेल बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है मैक्सवेल का। फिर है डेल बार क्रॉस ई बार इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, और बी का मतलब क्या है, म्यू जीरो एच। तो यहाँ पे अगर मैंने म्यू जीरो डाल दिया तो माइनस डेल डेल टी ऑफ म्यू जीरो एच, म्यू जीरो कॉन्स्टेंट माइनस म्यू जीरो इंटू डेल डेल टी ऑफ एच। इसको मार्क कर सकते हैं अपन इक्वेशन नंबर फोर, दिस इज द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। और उसके बाद है डेल बार क्रॉस एच बार इज इक्वल टू जे बार प्लस जे डी बार, पर क्योंकि जे बार जीरो है तो इट इज जे डी बार, मतलब डेल डी बाय डेल टी, और डी का मतलब है एप्सिलॉन जीरो इंटू ई, तो इट इज एप्सिलॉन जीरो इंटू डेल डेल टी ऑफ ई बार। ये आ गया मैक्सवेल का पांचवा इक्वेशन। अब अगर अपन ध्यान देंगे तो इक्वेशन नंबर टू और थ्री, जो मैक्सवेल का पहला और दूसरा इक्वेशन है, वो अपने अपने इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है। पर इक्वेशन नंबर थ्री और फोर, जो कि अबो इक्वेशन नंबर फोर और फाइव है, वो जो है वो मैक्सवेल के रिलेशनशिप की बात कर रहा है। इसके अंदर में एक फील्ड को अपन दूसरे फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टू कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड, आई एम टेकिंग द कर्ल ऑन इक्वेशन नंबर फोर। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फोर के ऊपर कर्ल ले रहा हूँ। तो कर्ल लेने की वजह से दोनों साइड में मुझे लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, डेल बार क्रॉस, कर्ल मतलब क्रॉस, डेल बार क्रॉस ई बार, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, माइनस
म्यू जीरो डेल डेल टी ऑफ डेल बार क्रॉस एच बार। ठीक है, तो यहाँ पर डेल बार क्रॉस एच बार की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन जीरो इंटू डेल डेल टी ऑफ ई डाल दो यहाँ पे, एप्सिलॉन जीरो इंटू डेल डेल टी ऑफ ई बार। तो म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो निकल जाएगा बाहर, डेल डेल टी का मतलब डेल स्क्वायर टी स्क्वायर ई बार, और लेफ्ट हैंड साइड का क्या होगा, डेल बार क्रॉस ई बार, मतलब ये क्या हो गया, ए बार क्रॉस बी बार। तो ए बार क्रॉस ए बार क्या हो जाएगा, जीरो, बचेगा कौन, ए बार स्क्वायर इंटू बी, मतलब माइनस डेल स्क्वायर ई, माइनस डेल स्क्वायर ई, क्योंकि डेल बार डॉट डेल बार इज इक्वल टू जीरो, तो डेल बार इंटू डेल बार इज डेल बार स्क्वायर ई, माइनस डेल बार स्क्वायर ई, और ये माइनस 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 गेट कैंसल, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल डेल टी ऑफ डेल स्क्वायर डेल टी स्क्वायर ई। अगर इसको इधर की साइड में अपन लाते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इंटू डेल स्क्वायर डेल टी स्क्वायर। ठीक है, वो हो जाएगा अपना वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। ठीक है, अगर इसी को अपने को फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फेजर फॉर्म में, तो अब कौन से फॉर्म होते हैं, एक होता है डिफरेंशियल फॉर्म और एक होता है फेजर फॉर्म। किसी भी इक्वेशन को मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलते हैं अपन, जब उसके अंदर डेल डेल टी डेल डेल एक्स डेल डेल वाई जो डेरिवेटिव वाला पैरामीटर है वो इन्वॉल्व होता है। और अपन उसको फेजर इक्वेशन कब बोलते हैं, जब उसके अंदर में एक्स प्लस जे वाई एक्स प्लस ए बी लाइक दैट। तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को फेजर में लाने के लिए हर वो जगह जहां जहां पे डेल डेल टी था वहां वहां पे अपने को क्या डालना पड़ेगा, वहां वहां पे अपने को डालना पड़ेगा, वहां वहां पे अपने को डालना पड़ेगा जे ओमेगा, मतलब डेल डेल टी की जगह पे अपने को क्या डालना पड़ेगा, जे ओमेगा। इसमें इसने यहाँ पे ये नोट नहीं किया हुआ इक्वेशन एक्चुअली, पर वो नोट करना चाहिए। जैसे इस इक्वेशन के अंदर में अपने को क्या चेंज करना पड़ेगा, मैं पहली इक्वेशन से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या लेना पड़ेगा, फिर से फ्री स्पेस इन फेजर फॉर्म अपने को वेव इक्वेशन निकालना है। तो सिग्मा जीरो, रो जीरो, एप्सिलॉन एप्सिलॉन जीरो, म्यू म्यू जीरो, जे बार जीरो, डी बार का यही वैल्यू आएगा, बी बार का यही वैल्यू आएगा, सेम सेम सेम। सिर्फ अब इक्वेशन नंबर फोर, जो आपका इक्वेशन नंबर फोर जो है वो है डेल बार क्रॉस ई बार इज इक्वल टू माइनस म्यू जीरो डेल डेल टी ऑफ एच बार। तो डेल डेल टी की जगह पे आ जाएगा जे ओमेगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा माइनस म्यू जीरो जे ओमेगा एच बार, और ये आ जाएगा डेल बार क्रॉस एच बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो जे ओमेगा ई बार, मतलब डेल डेल टी जहां जहां पे है वो वहां पे कौन आएगा, जे ओमेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट इज डेल जे ओमेगा अगर डाल दिया अपन ने तो माइनस म्यू जीरो जे ओमेगा डेल बार क्रॉस एच बार, तो ये जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा इट इज जे स्क्वायर, जे स्क्वायर मतलब माइनस, तो ये टोटल हो जाएगा जे ओमेगा का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, जे ओमेगा का स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, जे स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस, ये माइनस उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, देखो वाला आंसर में लास्ट में प्लस आता है, देखो यहाँ पे माइनस उधर जाने के बाद क्या आएगा प्लस, डेल स्क्वायर ई प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू जीरो एप्सिलॉन ई जीरो इंटू ई बन। ठीक है, अब अपन सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, दैट इज वेव इक्वेशन फॉर मीडियम कॉल्ड एज अ लॉसी डाइलेक्ट्रिक। पहला जो मीडियम है वो था फ्री स्पेस, अब दूसरा जो मीडियम रहेगा वो रहेगा लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब यहाँ पे अपन ने मीडियम के तौर पे दो कैपेसिटर प्लेट ली है या डाइलेक्ट्रिक प्लेट ली है, और जिसके अंदर में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव प्रोपोगेट होती है तो उसके अंदर में लॉस आता है, कुछ ना कुछ जो सिग्नल है वो अटेन्यूएट होता है या लॉस होता है। तो उसको समझने के लिए अपने को एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा उसका, दैट इज वेव इक्वेशन फॉर ईएम वेव इन अ लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। स्ट्रेट अवे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फेजर इक्वेशन। अगर नॉर्मल इक्वेशन अपने को निकालना है तो अपन पहले देते हैं कि लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब क्या। तो लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी जीरो, नहीं होगी यहाँ पे, लॉसी मतलब कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी आएगी, तो सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो, एप्सिलॉन एप्सिलॉन रहेगा, म्यू म्यू रहेगा, और जे बार अब जीरो नहीं होगा, इट इज सिग्मा इंटू ई बार। तो डी बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई बार, तो बी बार इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। तो पहला इक्वेशन अपना वही वापस, डेल बार डॉट डी बार इज इक्वल टू जीरो, दूसरा डेल बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो। तीसरा इक्वेशन क्या है, इट इज डेल बार क्रॉस ई बार इज इक्वल टू माइनस डेल डेल टी ऑफ बी, दैट इज माइनस डेल डेल टी ऑफ म्यू एच। तो माइनस म्यू निकाल दिया मैंने बाहर, डेल डेल टी का डेल डेल टी की जगह पे क्या आएगा, जे ओमेगा इंटू एच, तो माइनस म्यू जे ओमेगा एच। ठीक है, क्योंकि अपन कौन से फॉर्म में ला रहे हैं, फेजर, फेजर में होता तो अपन डेल डेल टी को रखते थे डेल डेल टी, और फेजर की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे ओमेगा। ठीक है, उसके बाद
J omega.